Hello, my dear students. I welcome you all in my YouTube channel, English Classes with Sasi Singh. And just here in this video, we are going to discuss or we are going to complete with the chapter. This is Zoddy's Fawn. And but before starting the chapter, I just want to discuss its theme and its a summary in short. So its theme is that we must not kill the animals for our own purposes. We should be sympathized towards them. And the summary is that there is a boy named as Jody. Once what happened, his father was stung or he was bitten by a snake. So to remove its poison, what he did, he killed a doe. DOE. What it means, beta? It is a she deer, है ना? So he killed a she deer to remove the poison of the snake. And at the end, what happened? Innocent doe had lost its life. Okay, but it had saved Jody's father. And immediately what happened? There was something hammering in the mind of this boy Zoddy that he should help the fawn. That was the baby of that particular doe who saved the life of his father. So what he did, he asked to his father, he took permission, he showed sympathy towards that fawn, and he went to the forest to find it. And at last what happened ki the boy Zoddy, he found the fawn that was the baby of that particular doe who saved the life of his father. He found it and he returned back to his home, and then they lived together very merrily. So guys, that was the summary of the story, and now we are going to discuss its explanation line by line. So let's begin with me. Before you read, often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. What happens most of the times when we burn or we make a cut mark of our own, then what we do, we never rush to the doctor. We only want to treat itself at home with the available things. Can you think of such home remedies for? And as like a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting. For these things, do you know the home remedies? Means whenever you have a cut on your knee, whenever you burn your arm, whenever you are stung by a bee. So the writer is asking about that all, that do you know the home remedies for these things? In this story, Zoddy's father has been bitten by a rattlesnake and he quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the पॉइजन. व्हाट हैपन्स कि ये जो जॉडी के फादर हैं वो बाइटन कर लेता है उनको एक स्नैक जो है, और फिर वो यूज करते हैं एक डॉय का हार्ट और उसका लीवर इस पॉइजन को ड्रॉ आउट करने के लिए. जॉडी वंडर्स करता है कि उसका जो छोटा लिटिल फॉन है लेफ्ट विदाउट अ मदर, जो कि अपनी माँ के बिना रह गया है, उसके बारे में वो बहुत सोचता है. एंड ही हैड अ ग्रेट सिंपैथी टुवर्ड्स हिम, एंड एट लास्ट ही इज बैक टू हिज होम विद दैट पर्टिकुलर फॉन. चलिए इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से. Zoddy allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. Means what? When Zoddy's father had killed the doe, that was the mother of that particular fawn. Now this boy Zoddy allowed his thought, means his thoughts were going back and back towards the fawn. He could not keep it out of his mind, means he was completely unable to remove such thoughts from his mind. He held it, means what? He had held it in his dreams, in his arms, means what? Ki the fawn that was very much the fawn on which he was showing very much sympathy, he always feels him in his dreams and in his arms. He slipped from the table and went to his father's beside. Means happened this ki once he was sitting on the table and then he left it and he went near the father. Penny lay at rest. What is the name of his father? It is Penny. Okay, so his father was lying in rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Means what? He was very clear, his eyes were open, and at that time Zoddy said, "How are you feeling, Pa?" Zoddy पूछता है अपने फादर को कि पा आप कैसा फील कर रहे हो.
Now the response to his father was that, just fine, son. Old Death has gone thieving elsewhere, but wasn't it a close shave? Means what? His father said that just I'm feeling fine, but that was the that old Death has thieving elsewhere means वो मुझे चीट करके, जो डेथ था वो चला गया है कहीं, मेरी जो मृत्यु थी वो मुझे चीट करके चली गई है ना. बट वॉजेंट इट अ क्लोज शेव? क्या ये क्लोज शेव नहीं था? मीन्स एक नैरो एस्केप नहीं था. वॉजेंट इट अ नैरो एस्केप? क्या मैं बाल बाल नहीं बचा? वर देयर एनी चांसेस for my escape, for my saving, for my life? Okay, so he got very much surprised on this. I agree. मैं एग्री करता हूँ. बेटा ऐसे बोलता है. Penny said, I'm proud of you, boy, and the way you kept your head and did what was needed. Means what? Penny, जो कि उसके फादर हैं, वो बोलते हैं that I'm proud of you, my boy. प्राउड करता हूँ मैं, and you did all that which was required. जो कुछ भी जरूरी था वो आपने किया. ठीक है. Pa, yes, son. Now Jody said to his father that Pa. Then his father said, yes, son. Then again Jody said that, Pa, do you recollect the doy and the phone? क्या आप recollect कर सकते हैं doy को और phone को? Means what? कि she deer और उसके बच्चे को, FAWN, phone. As you may see it here in the picture, this is the baby of a doy. एक हिरनी का बच्चा है ये. ठीक है. Doy means she deer. Okay. चलिए आगे चलते हैं. I can never forget them. The poor doy saved me. That's certain. Means what? Ki the father of Jody, he said that I can't forget them. The poor doy that saved me, जिसने मुझे बचाया. Pa, the phone may be out of there yet. Means it might be hungry and very scared. Now the boy is worrying about the phone. He was worrying about the baby of that particular doy who saved the life of his father. And what he said that he is still out and he might be very hungry and might be very scared to the wild animals in the jungle. I suppose so. His father says that I also suppose the same. मैं भी यही सोचता हूँ. And Pa, I'm big boy now and I don't need to drink milk. बेटा बोलता है, जॉडी बोलता है, now I have become a boy, big boy, and now it is not need to drink milk to me. And why don't I go and see if I can find the phone? Now I should go to the forest and find the phone and bring it here. Now this is the question mark. And can I bring this here? Means what? कि क्या मैं उसको यहाँ ला सकता हूँ फोन को, डॉय के बच्चे को क्या मैं यहाँ ला सकता हूँ? And raise it. Penny lay quiet, staring at the ceiling. Means Penny जो उसके फादर हैं, he was lying quiet, he was staring at the ceiling. छत को वो देखने लग जाते हैं. Boy, you have got me hemmed in. तुमने मुझे confuse कर दिया है. I wouldn't take much to raise it. पा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉन्स. मीन्स वॉट कि जल्दी ही लीव्स को और अकॉन्स को खाना शुरू कर देगा. अकॉन्स का मतलब होता है स्मॉल ब्राउन नट्स को खाना शुरू कर देगा. यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज. नाउ दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हिज फादर पेनी दैट यू आर स्मार्टर देन द बॉयज ऑफ योर ओन एज. वी टुक its mother and it wasn't to blame. Means we took the life of its mother and now this is not to blame to this fawn. We should not leave him to suffer. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Means it will be ungrateful if we leave him टू स्टार. भूखा मरने के लिए अगर उसको छोड़ देते हैं हम लोग, देन इट विल बी अनग्रेटफुल. अच्छा नहीं होगा, अनग्रेटफुल होगा. सन, आई कांट से नो टू यू. मैं आपको नो नहीं कह सकता. आई नेवर थॉट आई वुड लाइव to see another day. Means what? His father Penny says that I can't imagine the another day in the absence of that doy's liver and heart. Means if I could not get the liver and heart of that particular doy, then I could not imagine the next day. मैं देख ही नहीं पाता अगले दिन को. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. So this boy Jody has got the permission to his father to bring that particular phone. Can I ride back with Millville and see if I can find it? Now the question is from the boy Jody side.
दैट कैन आई राइड विद मिलविल के साथ क्या मैं जा सकता हूँ इसको फाइंड करने के लिए. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. मीन्स वॉट, पैनी बोलते हैं कि यस इन्फॉर्म योर मदर टू गो देयर विद व्हील. He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. Means at the time when his mother was pouring coffee, she was serving coffee to someone or the people who were there at the home. When she was serving coffee to them, he went there and sat on a table. He said, "Ma, Pa says I can go bring back the phone." Means what? Ki Pa had allowed me to bring back the phone. फोन को वापस लाने के लिए उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया है. She had the coffee pot in air, mid air. Means now she was having that coffee pot with her. So she became statue like. Statue की तरह बन जाती हैं. What phone? Means कौन सा phone? The phone belonging to the boy we killed. Now the boy explains that the phone, I'm talking about the phone that belongs to a doy we killed to our own purpose to save father. ठीक है. We used the doy's liver to draw out the poison and save Pa. Means we used the liver of that particular doy to draw out or to remove the poison and we saved Pa. And just I'm talking about that particular phone of that doy. She gasped. Means she deep breath. She took deep breath and well, for pity's sake, means you are having pity on him. Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Means this is the allowance to my father's side that it will be ungrateful if we leave it to starve. अगर हम इसको भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो then it will be ungrateful. Doc Wilson said, means that's right, ma'am. Some other person who was sitting there to whom she was serving coffee. He says that that's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his daddy is right. Means they two, boy and his daddy, they both are right. We should help the animals. आगे देखिए. Millville said he can ride back with me and I will help him find it. मिलविल ने बोला कि वो मेरे साथ में राइड करेगा एंड आई विल हेल्प टू फाइंड इट. मैं उसको फाइंड करने में हेल्प करूंगा. शी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली. Well, if you will give it to your milk, we have got nothing else to feed it. क्या तुम इसे अपना दूध पिला दोगे? जिस मतलब अपने हिस्से का, अपने पार्ट का जो दूध है उसको पिला दोगे? हमारे पास कुछ नहीं है उसको फीड कराने के लिए. मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. चलो हम लोग राइडिंग पे चलते हैं. माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. माँ बैक्स्टर जो कि एक दूसरे वहाँ पे करेक्टर हैं, वो भी पास में बैठे हुए एंड ही आस्क्ड एनेक्सियसली, बहुत चिंता से पूछते हैं कि यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, बहुत दूर मत जाना आप लोग, क्या बहुत दूर जा रहे हो? Jody said, I will be back before dinner for sure. Means surely we will be back before dinner. Millville mounted his horse and pulled Jody's up behind him. मिलविल माउंट करते हैं, हॉर्स पे चढ़ जाते हैं और जॉडी को भी अपने पीछे बिठा लेते हैं. पुल्ड जॉडी बिहाइंड हिम. ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर? Now this is the question from Jody's side. What he asked that, do you think that phone will be there still? Will you help me find him? And will you please help me to find him wholeheartedly? We will find him if he is alive. Means what? These were the words of this man Millville. Millville के words थे कि yes, surely if he is still alive, then we will find him. How you know it's he? Now this is the question from Millville कि how do you know that it is he? कि वो he है, means male है, male baby है. ठीक है. The spots were all in a line. Means spots पूरे एक लाइन में थे. On a doy fawn पे. Pa says the spots are very every which way. Means पा बोलते हैं कि जो डॉय होती है मीन्स फीमेल होती है, उनमें एक लाइन में स्पॉट्स होते हैं और एवरी विच वे मतलब इन डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं. और वो वाला जो फोन था उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या थे?
डायरेक्शंस में स्पॉट से। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स टू ऑफ द फोन। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग्स, मीन सारी चीजों को क्लियर करते हुए वो लोग पास हो जाते हैं। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलवील। नाउ दिस इज द बॉय जॉडी, ये बोलता है कि कट टू द नॉर्थ मिलवील, प्लीज कट टू द नॉर्थ। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बाइटन बाय अ स्नैक, मीन्स ये थोड़े आगे की बात है जहां पा को स्नैक ने बाइटन किया था एंड किल द डॉ एंड आई सॉ द फोन, और उन्होंने डॉ को किल किया था एंड एट दैट प्लेस आई सॉ द फोन, और मैंने उसके बच्चे को वहीं पे देखा था, फोन को वहीं देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलवील विद हिम, मीन्स जॉडी फील करता है इस चीज को दैट मिलवील इज अनविलिंग टू वर्क विद हिम। इफ द फोन वॉज डेड or could not be found, he could not have his disappointment seen, means अगर फोन उसको नहीं मिला, अगर वो मर गया, तो वो उसके डिसअपॉइंटमेंट को सीन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो बॉय है अगर उसको वो नहीं मिला, बॉय वॉज वेरी कीन इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर एनिमल, फोन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो ये जो मिलवील है वो सोचता है कि अगर वो फोन मर गया होगा या फिर वो इसको नहीं मिला तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। एंड इफ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर उसको फोन मिल जाता है, वो बच्चा मिल जाता है, बेबी मिल जाता है, तो ये मीटिंग काफी लवली होगी और एंड्योर होगा इसको शेयर कर पाना वर्ड्स में। ही सैड इट इज नॉट फार नाउ, ये लड़का जो है वो बोलता है कि इट इज श्योर, सॉरी, ही सैड इट इज नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। स्क्रब जो था वो काफी थिक था, बहुत ज्यादा घनी झाड़ियां थी वहां पे, हॉर्स के लिए वो उनको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आई कैन मेक इट ऑन फुट, तो जो जॉडी है वो बोल देता है मिलविल को कि मैं पैदल ही आगे चला जाऊंगा, बट आई एम एफ्रेड टू लीव यू बॉय। मिलविल सेज कि बट आई एम एफ्रेड, मैं डरता हूं तुम्हें अकेला छोड़ने से। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बाइटन बाय अ स्नैक टू, सपोज करो कहीं तुम खो गए या तुम स्नैक ने खा लिया तो क्या करूंगा मैं। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रख लूंगा मेरा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मेरे को ज्यादा टाइम भी लग सकता है फोन को सर्च करने में, फाइंड करने में। इफ ही इज वेंडर्ड, अगर वो कहीं घूम रहा होगा, लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पे आप छोड़ दीजिए। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, you know north here and east, means he Millwheel says that you know about all the direction, that this is east and this is north, there and there, यहाँ and that tall pine makes a bearing so long। टॉल पाइन, एक बहुत बड़ी पाइन थी, एक लता थी, एक बेल थी जो कि उनको परेशान कर रही थी। सो लॉन्ग मिलवील आई एम ऑब्लाइज्ड, बहुत लंबी है। मिलवील आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ, आपका आभारी हूँ इस चीज के लिए। मेक्स अ बियरिंग का मतलब होता है एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शंस, मीन्स अ टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। एक जो लंबी वाली पाइन थी, एक बेल जैसा था, बोले कि इस पे चढ़ के देख लो, ये तुम्हें डायरेक्शन का काम करेगी, आइडेंटिफाई करने में डायरेक्शंस को, तुम इस पे चढ़ के डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। So waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of the twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. What happened? He was only feeling. He could only hear the sound of his own feet because of that. साउंडेड साइलेंस, मीन्स वॉट की इतनी ज्यादा साइलेंस थी वहां पे कि क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स की साउंड ही आ रही थी जो कि उसके खुद के पैरों से हो रही थी। एंड ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ he had mistaken his directions, and what happened, the boy Jody, he became very surprised on a thought that had he mistaken his direction, कि क्या उसने अपनी डायरेक्शन को पता करने में गलती कर दी है, क्या वो गलत डायरेक्शन में आ गया है। Then the buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard का मतलब होता है बच्चे a large bird like a vulture that eats the flesh of dead animals, means
जो डेड एनिमल्स का मीट खाती है, फ्लैश खाती है, ठीक है। तो वो दैट बर्ड इज कॉल्ड बजार्ड। वो उड़ती है बहुत जोरों से, उसके सामने फ्लैप करती है अपने विंग्स को, एयर में उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, मीन्स ये जो जॉडी है वो क्लियरिंग से अंडर द ओक्स आता है, ओक ट्री के नीचे आता है। एंड बजार्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कार्केस ऑफ द डॉय, मीन्स वॉट एट दैट place what he found that particular doy who was killed by his father. It was still lying there, and a group of buzzards was sitting there circling around its carcass. इसके कार्केस के पास, कार्केस मीन्स होता है बच्चे डेड बॉडी, है ना। तो सर्कल बना के जो बजार्ड्स थे वो उस डॉय के, जो कि किल की थी उसके फादर ने, उसका लिवर और हार्ट यूज करने के लिए उसके चारों तरफ सर्कल बना के बैठे हुए थे। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम, मीन्स हिज्ड करते हैं उस पे, उसकी तरफ, उसको यानी कि जो जॉडी है उसकी तरफ एकदम से हिज्ड करते हैं अपनी नेक्स को, लॉन्ग जो उनकी गर्दन है उनको घुमाते हुए। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। वो अपने बो को, अपने धनुष को, जो भी उसके पास में है उसको यूज करता है, उनकी तरफ फेंकता है और वो सारे उड़ के फ्लू करके एक पास वाले नियर बाय ट्री पे बैठ जाता है। एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाय ट्री पे जाके बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स but the big cats killed fresh and they had left the doy to the carrion birds, means what कि सैंड जो था, मीन्स जो वहाँ बालू था, इट शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, बहुत बड़े बड़े कैट का, कैट मीन्स यहाँ पे टाइगर, लायन, उनसे मीनिंग है कि उनके भी फुटप्रिंट्स को शो कर रहा था वहाँ पे जो सैंड था, जो मिट्टी थी। बट जो बिग कैट्स होते हैं ना, दे किल्ड फ्रेश, वो फ्रेश किल करके ही खाते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डॉय टू द कैरियन बर्ड्स, और उन्होंने इस डॉय को छोड़ दिया था किसके लिए, इन बर्ड्स के लिए, सड़े हुए बर्ड्स के लिए। कैरियन का मतलब होता है रोटन मीट, बर्ड्स के लिए ही छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। पार्टेड द ग्रास को पार्ट करता है मीन्स मूव्ड करता है, पुश्ड करता है, घास को हटाता है और उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको फोन जो है वो दिखाई दे जाता है। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे, मीन्स ही वॉज नॉट फीलिंग दैट दिस इज द इंसिडेंट ऑफ येस्टरडे, द फोन वॉज नॉट देयर। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग्स को सर्कल कर देता है वो, मतलब सारे घास फूस को वहां से हटाता है। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहां ना कोई साउंड थे ना साइन थे। द बजार्ड्स क्लैग्ड देयर विंग्स, बजार्ड्स जो थे मीन्स जो लार्ज बर्ड्स थे वो अपने विंग्स को क्लैग्ड कर रहे थे। इम्पेशेंस टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपने बिजनेस पे वापस जाने के लिए, मीन्स दे वॉन्ट टू ईट दैट डॉय। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on the all fours, studying the sand for the small hoofs print. Means what कि रिटर्न कर ये जो बॉय है रिटर्न करता है उसी स्पॉट पे जहाँ उसने फोन को उस टाइम पे देखा था, इमर्ज्ड हुआ था जहाँ पे फोन, और वो उन हूफ प्रिंट्स को, स्मॉल हूफ प्रिंट्स को स्टडी करता हुआ आगे बढ़ता है। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, मीन्स दैट कि जो नाइट रेन था वो वॉश्ड अवे कर ले गया, मीन्स इट हैड रिमूव्ड ऑल द साइंस, ऑल द ट्रैक्स, ऑल द प्रिंट्स एक्सेप्ट, सिर्फ किसको छोड़ के, कैट और बजार्ड्स के प्रिंट्स को, फुट प्रिंट्स को छोड़ के बाकी सभी के फुट प्रिंट्स वहां से रिमूव हो गए थे। आगे क्या होता है थर्ड पार्ट में, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. Means that कि now he had seen the Zodi has seen the fawn, and the fawn lifted its face towards him and he was staring towards the boy with its liquid eyes, means आंसू भरी हुई आंखों से, वेट आई से, डम्ब आई से वो उसकी तरफ देख रहा था। इट वॉज क्विवरिंग, मीन्स इट वॉज शेकिंग, द फोन वॉज शेकिंग, इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन, मीन्स it was not possible to this fawn to make any kind of efforts to rise and to run. He could not do all these things. Zodi could not trust himself to move. He whispered, "It's me." Could not trust himself to move.
means that Jody was not very clear with this fact that he should move towards the phone or not. He whispered, "It's me." He whispered to this phone that it's me, phone. The phone lifted its nose, scenting him. नोज को लिफ्ट करता है जो फोन है और सेंट करता है उसको, सूंघता है. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. अपने एक हाथ को उसके नेक पे ले जाता है, सॉफ्ट नेक पे, और रख देता है. द टच मेड हिम डेलीरियस. डेलीरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड. मीन्स ये जो टच था उस फोन के साथ में उसको काफी डेलीरियस बना देता है, एक्साइटेड कर देता है. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट. वो अपने पूरे आगे बढ़ता है, ठीक है ना, अपने उस फोन के पास में बिल्कुल क्लोज में जाके बैठता है. ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी. मीन्स ये जो फोन है इसके चारों तरफ अपनी आर्म्स को रख देता है. अ लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट. कन्वल्जन मीन्स होता है शिवर, बट ओवर इट, बट इट डिड नॉट स्टायर. एक शिवरिंग होती है लेकिन वो स्टायर नहीं होता. मीन्स हिलता नहीं है. कौन नहीं हिलता है? ये जो फोन है वो हिलता नहीं है. मीन्स दैट कि जब उसको पकड़ता है ये लड़का, जॉडी जो है, वो अपने हाथों में पकड़ता है तो उसको एक शिवरिंग होती है लेकिन वो हिलता नहीं है, कांप जाता है, ठीक है. ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फोन वर इन अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट. चाइना डियर मीन्स होता है अ क्ले डियर दैट इज इजिली ब्रोकन. स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली, मतलब उसने उसकी साइड्स को बहुत जेंटली पकड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिस इज अ चाइना डियर. मीन्स इट कैन ब्रेक एनी टाइम, किसी भी टाइम पे टूट जाए. मीन्स दैट वॉज वेरी सॉफ्ट. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. बिल्कुल सॉफ्ट था, स्लीक था, स्मूथ, शाइनी, एंड देयर वॉज अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास इन इट. He rose slowly and lifted the phone from the ground. खड़ा होता है और स्लोली, धीरे से खड़ा होता है और फोन को लिफ्टेड कर लेता है, ग्राउंड से उठा लेता है. इट्स लेग्स हंग लिम्पली. मीन्स एट दैट टाइम व्हेन ही लिफ्टेड द फोन इन हिज आर्म्स इट यूज्ड टू हंग इट्स लेग्स लिम्पली. मीन्स थोड़ा लिम्पली करके, मतलब बिल्कुल जैसे बेजान से करके अपने पैरों को लटका लेता है. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स. मीन्स दैट उसके जो पैर थे वो काफ़ी लंबे थे और वो फ़ोन को अपनी आर्म्स के नीचे लगा लेता है, अपने हाथ के नीचे लगा लेता है. हॉइस्ट का मतलब होता है पुल अप हायर, ऊपर खींचते हुए, मतलब जमीन से उठाते हुए उसको अपने बगल में ले लेता है. ही वॉज एफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. मीन्स दैट कि जो जॉडी है ही इज स्टिल फियरिंग दैट इट माइट हैपन दैट द फोन में किक हिम, it may bleed him at the sight and smell of its mother. Means whenever he will get the sight, when he will smell its mother, he may kick him, he may bleed him. वो उसको किक कर सकता है, उसको चोट पहुंचा सकता है अपने पैर से. He skirted the clearings and pushed his way into the thicket. Means सारी क्लियरिंग्स को साइड करता है. मीन्स जो भी वहाँ पे बुशेस थे, जो दूसरी चीज़ें थी, उनको साइड में करता है और थिकेट से निकल लेता है. It was difficult to fight through with his burden. यानी सारी बुशेस को वहाँ से फाइट करना, उनके साथ में हटाना, इस बर्डन के साथ में. बर्डन किसका था? उसके पास में फोन का था. तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करना उस बर्डन के साथ में उसके लिए पॉसिबल नहीं था, डिफिकल्ट था. द फोन legs caught in a bush and he could not lift his own with freedom. Means happened that कि the phone's one leg had caught in a bush and now he could not lift the phone. It was not easy to make him free. He tried to shield its face from prickling vines. Means that उसने कोशिश की काफ़ी क्या करने की, उसके फेस को, अपने फेस को उन prickling vines से बाहर निकालने की कोशिश की. Its head bubbled with his stride. मतलब उसका जो सिर था वो बबल्ड किया उसके स्ट्राइड से. मीन्स उन वाइन्स को, जिन वाइन्स को वो रिमूव कर रहा था, उन वाइन्स को हटाने में उसका जो फेस था, किसका, फोन का, वो बबल्ड किया, ठीक है, इस स्ट्राइड में, इस लड़ाई में, यानी कि इस
थोड़ी सी जो परेशानियों को वो फेस कर रहा था, इन परेशानियों में हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. Means now he took a टर्न. ट्रेल मीन्स होता है बच्चे टर्न. वो उस टर्न पे पहुंचा जहां पे जाके उसने काफी तेज चलना शुरू किया, और जो इंटरसेक्शन था किसका, रोड टू होम का, मतलब उसके घर का रास्ता था. ही स्टॉप्ड टू रेस्ट. जंगल से अब वो मेन रोड पे आ गया था. ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स. मीन्स व्हाट हैपेंड, ही गॉट बर्डन, he felt burdened to this phone, and now he decided to stop or to take rest, and he kept the phone down on its dangling legs. उसके dangling legs पे, उसके डगमगाते हुए कदमों पे उसने उस फोन को रख दिया. It wavered on them. Means the phone was making waves on its feet. It looked at him and bleated. It looked at him means the fawn looked at Jody and bleated. Bleated means to make sounds. वो आवाजें करना शुरू कर दिया उसने. He said and chanted, I will carry you after I get my breath. Means just take me, just allow me to take some rest. Take me breath. थोड़ा सांस लेने दो. I will carry you. After that, मैं उसके बाद तो मैं कैरी कर लूंगा. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. Means Jody now having some previous remembrance with him or in his mind, that which his father declared. What was the remembrance? That if a fawn first carried by someone, then he always follow him. He started away slowly. धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है. The phone stared after him. Stared after him. Phone also stared after him. Phone भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता है. He came back to it and stroked it and walked away again. उसको उठा लेता है वापस से और फिर चलना शुरू कर देता है. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. मीन्स हैपन वॉट कि ये जो फ़ोन था ये थोड़ा सा तो वॉबलिंग करते हुए चलता है, लेकिन अपने स्टेप्स पे उसकी तरफ, लेकिन फिर पिटियसली क्राइड करने लगता है, आवाज़ करने लगता है, बिकॉज दैट वाज नॉट पॉसिबल टू दिस लिटिल फ़ोन टू मूव ऑन फुट. इट वाज विलिंग टू फॉलो हिम. मीन्स ही वॉन्टेड टू फॉलो द बॉय जॉडी, बट इट बिलोंग टू हिम. अभी ऐसी से बिलोंग करता था. इट वॉज हिज ओन. मीन्स द फोन वॉज जॉडीज नाउ. ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय. मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन. वो इसको फॉन्डल करना चाहता था, इसके पीछे दौड़ना चाहता था. टू रोम्प विद इट, प्ले गेम खेलना चाहता था. टू कॉल टू इट टू कम टू हिम. इसको आवाज़ लगाना चाहता था, इसके पास आना चाहता था. He dared not alarm it. उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसको अलार्म कर सकते, उसको नुकसान पहुंचा सके. He picked it up and carried it in front of him over his 2 arms. अब फिर से ये लड़का जो जॉडी है वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है, आर्म्स में उठा लेता है. ठीक है ना. It seemed to him that he walked without effort. Now, for some time, it seemed that now he is walking without efforts. Means after carrying this phone in his arms, he was able to move smoothly. He was able to walk without efforts. His arms began to itch and he was forced to stop again. This was the second time when his arms began to itch. Itch means pain. उसके हाथों में दर्द होना शुरू होता है. एंड नाउ अगेन ही स्टॉप. व्हेन ही वॉक्ड ऑन द फोन फॉलोड हिम. मीन्स जब वो पैदल चलता है, चलने लगा उसको नीचे रख के, तो फोन ने उसको फॉलो किया. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस. मीन्स दैट जो लड़का है जॉडी वो उसको अलाउ कर देता है टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूर पैदल चलने के लिए. देन पिक्ड इट अप अगेन, और वापस उसको गोद में उठा लेता है, अपने आर्म्स में ले लेता है. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. घर की दूरी कुछ भी नहीं थी. ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. He was wet with the sweat, but a light breeze blew through the June morning. Means the distance home was nothing.
ही कुड हैव वॉकड ऑल डे, वो पूरा दिन चल सकता था, पूरी रात चल सकता था इसको कैरी करके, वो इसको वॉच करना चाहता था, इसको फॉलो करना चाहता था। वो पसीने से, स्वेट से गीला हो गया था, बट जो जून मॉर्निंग का ब्रीज था उसने उसको कूल कर दिया, cooling him. The sky was as clear as spring water in the blue china cup, means as the blue china cup के अंदर जैसे जो spring water है वो जितना clear होता है उतना ही clear ये सारी चीज़ें थी। अब इसको ओके, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, मीन्स ये जो फोन था ये नाइट्स रेन के बाद में कैसा हो गया था, फ्रेश हो गया था एकदम। And he fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom. Now these were the thoughts moving in his mind, that when he will enter in the home, he will first move in the house and then he will go with this phone in Penny's bedroom, with the phone walking behind him. वो और जो फोन है वो उसके पीछे चल रहा होगा। बट एट द स्टेप्स द फोन बैग्ड and refused to climb then, means he had entered in the house, but what happened at the stairs that he could not climb on them. He refused, means the phone had refused to climb on the steps. He picked it up, उसने उसको उठा लिया and went to his father के पास जाता है। Penny lay with closed eyes, उसके father eyes close करके लेटे हुए थे। Zodie called, father, पा look, पा देखिए। Penny turned his head, Penny अपने head को turn करते हैं। Zodie stood beside him, the phone clutched hard against him, that phone बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ था अगेंस्ट हिम, अपने सामने उसने। और जॉडी को देखते अपने बगल में खड़ा हुआ। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, मीन्स द फादर फाउंड द ब्राइटनेस इन हिज ओन सन्स आईज एज द ब्राइटनेस कुड बी सीन देयर इन द आईज ऑफ फोन। ही सेड, आई एम ग्लेड यू फाइंड इट, मैं बहुत खुश हूँ। एंड एट लास्ट योर एफर्ट्स ब्रिंग कलर, तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं वो कलर लाए, प्रयास तुम्हारे हैं जो सफल हुए, है ना। जॉडी देन वेंट टू द किचन, द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, यानी इट मीन्स दैट कि जो जॉडी है वो किचन में जाता है और जो फोन है वो भी उसके साथ पीछे पीछे उसको फॉलो करता है। पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, किचन सेफ में अभी तक रखा था वो एक मिल्क का पैन, एक कढ़ाई जिसमें दूध था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उस पर जो मलाई थी वो पड़ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने एक जग में क्रीम को निकाला। एंड ही पोर्ड द मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, GOURD, गॉड मीन्स होता है बच्चे कटोरी, एक कटोरी में उसने उस मिल्क को पोर्ड कर दिया, मीन्स निकाल लिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, उसको उस मिल्क को उसने, उस गार्ड को उसने फोन के सामने क्या किया, हेल्ड आउट किया, पकड़ा। इट बटेड इट सडनली, मीन्स उसने उसको खिसका दिया, उसने झटका दे दिया, जोरों से धक्का दे दिया। किसने, फोन ने। स्मेलिंग द मिल्क को स्मेल करके, बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वॉज गोइंग टू व्हेन ही वॉज फीडिंग सच थिंग, जब वो किसी चीज को ऐसी को खा रहा था। ही सेव्ड इट precariously. He saved it precariously from spilling over the floor, means the boy saved it anyhow to spill over the floor, means floor पे गिरने से उसको उसने कैसे भी करके बचा लिया। It could make nothing for the milk in the guard. उसने बिल्कुल भी गार्ड से दूध नहीं पिया। He dipped his fingers in the milk and thrust them into Fawn's soft wet mouth. What he did, he dipped his fingers in the milk and then those fingers were thrust into Fawn's soft and wet mouth. It sucked greedily, means that कि उन fingers को उसने greedily suck कर लिया, चूस लिया। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. और जब भी वो उनको withdrew करता था, means उसके मुंह से बाहर निकाली, तो वो bleat करने लगा frantically. ब्लीड का मतलब होता है आवाजें निकालना। एंड बटेड हिम, और उसको बटेड करने लगा, मीन्स धक्का सा देने लगा। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, वापस से उसने अपनी फिंगर्स को डिप्ड किया दूध के अंदर, वापस से डुबाया। एंड एज द फोन सक्ड, और फिर से फोन ने उनको सक किया। ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, वो धीरे से उनको मिल्क में डुबाने लगा। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोटेड,
फिर जो ये जो कौन है अपना फोन है, उसने क्या किया, उसने सक कर लिया पूरे दूध को, ठीक है। इट स्टाम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंसली, मीन्स दैट कि उसकी अपनी उंगलियों को वो कटोरे के पास में ले आता है। वो सोचता है, वो एक चालाकी खेलता है कि ये मेरी उंगलियों को सक कर रहा है, तो मैं अब क्या है अपनी फिंगर्स को इस कटोरे के पास में ले जाता हूँ, और जैसे ही ये अब इसको मिल्क का जो स्मेल है वो तो समझ आ ही गया है, वो इसमें से पी लेगा। बट इट डजेंट हैपन। इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंसली, स्टाम्प करता है वो अपने छोटे छोटे कदमों को, हूफ्स को, है ना, इम्पेशेंसली। वो उसमें से दूध ही नहीं पीना चाहता है। एज लॉन्ग एज ही हैड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट, मीन्स जब तक कि जो मिल्क का लेवल था उस गॉड के अंदर, उस कटोरे के अंदर, वो नीचे हो गया, तब तक जो फोन था वो पूरे तरीके से कंटेंट हो गया, मीन्स संतुष्ट हो गया, उसका पेट भर गया था। इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमली, इट वॉज एस्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, मीन्स दैट ही अपनी आंखों को ड्रीमली क्लोज कर लेता है, कौन, ये फोन। एंड इट वॉज एस्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट इट्स हैंड, और अब जैसे कि वो मानो अपने उसके हाथों को क्या कर रहा है, अपनी टंग के साथ में फील कर रहा है। इट्स स्मॉल टेल फ्लिकर्ड बैक एंड फोर्थ, इसका जो छोटा पूंछ है वो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करता है। एंड द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड गगलिंग, और पूरा का पूरा जो मिल्क है वो फोम में और गगलिंग में क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। सो गाइज, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस स्टोरी, एंड इफ यू हैव made something cleared in your mind regarding it, then please write it in the comment box, and please subscribe my channel if you like the video. Thanks a lot for watching it.